So in this lecture, we are going to discuss another very important category of the K-map, that is POS, product of sum. I just want to discuss on a very superficial ground. So as we know that the expression is divided into two parts. One is SOP expression, the another one is PS expression. Just a moment, please. I want to show you. See, are you able to see the screen to all of you? Yes, sir. Okay, see. So expression are basically divided into two categories. One is SOP expression, the another one is PS expression, product of sum. SOP expression is also called minterm, okay? And the property of the SOP is 1. We have seen these examples in the K-map. Whenever we get the question of related to the SOP K-map, we basically plot the 1 on a desired on a specified cells, because the property of SOP is 1. What about the symbolic representation? Just a moment, please. SOP is denoted by sigma and the POS denoted by pi. Understand? So you have to understand the three important terms: SOP, minterm, property, and symbolic representation. Suppose there is expression of POS, product of sum, then maxterm, property of the POS 0, and the symbols representations are pi. Okay, we will see what are the similarities between the SOP and POS. Okay, just a moment. So now just to read this line. So according to the division of expression, different K-maps, sorry, this is K-map is available. One K-map for SOP that we have seen in a very detailed manner, the another K-map for POS. Understand? So these points and differences are clear to everyone. Okay. Now, you know that I don't want to repeat that stories again. So two variables, अगर हमें दो variables के लिए K-map बनाना है, so 2 to the power 2, that will be 4 blocks. 4 blocks K-map will be used. चाहे SOP हो या POS हो, these formulas are not going to be changed. अगर हमें 3 variables के लिए K-map draw करना है, then 2 to the power 3, 8 blocks K-map will be used. Similarly, अगर हमारे पास 4 variables के reduction के लिए कहा जाता है, these are all the things will be given in the question. हमें नहीं सोचना है. Okay, 2 to the power 4 will be the 16 block. Understand? इसमें 8 और 16 are the most important. Very rarely 2 to the power 2 4 variable पूछा जाता है, but हम demonstration में तीनों को include करते हैं. तो अभी हमें देखना है कि 2 variables, 3 variable, 4 variable के लिए K-map structure किस तरह से draw होगा. 1 second, someone is asking the question. Okay. One thing I would like to say to all of you, if you are typing anything, तो वो जो भी आप टाइप करते हैं वो मुझे भी विजिबल रहता है. ओके, चाहे वो आप अपने फ्रेंड को टाइप कर रहे हो या किसी को भी. ओके, सो नो प्रॉब्लम. ओके, सो जस्ट अ मोमेंट. सो अभी यहां पर से इतना पार्ट हमारा कवर हो गया. नाउ immediately we have to switch towards the structures. Okay, in between I want to ask, anybody have any doubt from the previous lecture? Means the prerequisites of the POS is simple that आपको SOP अच्छे से आना चाहिए. अगर आपको SOP अच्छे से आना है तो within 5 minutes आप POS को समझ लेंगे. तो SOP K-map सबको properly अच्छे से आ गया है? Please answer my question. Yes, sir. Yes, sir. Huge amount of questions are there. आप अगर उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं then you will be expert और आपके पास टाइम है.
2 से 3 दिन अगर आप एसओपी को दे देते हैं, 2-3 दिन, तो यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट. ओके फाइन. सो ओके, सबसे पहले 2 वेरिएबल्स के लिए हम लोग देखते हैं. 2 वेरिएबल्स का मतलब हो गया ए बी. सो हाउ मेनी ब्लॉक्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट? 4 blocks. So 1 second. Okay. See. So for 2 variable we have to draw. For 2 variables we have to draw 4 blocks. These are the 4 blocks. Okay. अब ये जो portion है left hand side, that will be occupied for A. और ये जो पोर्शन है वो बी के लिए है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रे कोड इट विल बी 1. ओके, आई थिंक दीज आर ऑल द थिंग्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ द डिफरेंस इज दैट दिस इज द सिमिलैरिटी. मीन 0 and 1 we basically have plotted in the SOP. हमने SOP में भी 0 और 1 प्लॉट किया था और PS में भी हम 0 और 1 प्लॉट कर रहे हैं. ये तो सिमिलैरिटी थी. यहां पर एक चीज हम लिख लें कि हम लोग बेसिकली PS के लिए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं. तो PS का मतलब होता है मैक्स टर्म, ओके, और प्रोडक्ट ऑफ सम. तो यहां पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 1 को 0 बनाना होता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है 1 मिनट, प्रॉपर्टी ऑफ पीएस इज 0. तो 1 नहीं रह सकता इसमें. तो जितने भी 1 है उनको हमें 0 बनाना है. तो 1 को 0 बनाना बहुत आसान है. यू हैव टू सिंपली टेक द कॉम्प्लीमेंट. ओके, 1 सेकेंड, आई विल शो यू. तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इसमें तो कुछ हमें करना नहीं. तो सिंपली वी हैव टू प्लेस ए. बट ये 1 है, तो 1 को 0 हम कैसे बनाएंगे? सिंपल वी हैव टू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. अंडरस्टैंड? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ओके, अगर आपको याद हो एसओपी, तो हमने एसओपी में लिखते हैं ए बार ए, क्योंकि वहां हम 0 को 1 बनाते हैं, यहां हम 1 को 0 बनाते हैं. This is only the difference between the SOP and PS. Remaining all the things are same. Now come to this part. ये वाला पार्ट हमारा B के लिए है, तो ये तो ऑलरेडी 0 है. All right. Now what about this? Smallest K map in the PS. Now what about these cell numbers? ये सेल नंबर जैसे आपके एसओपी में थे वैसे ही आपके पीओएस में होंगे. जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई विल आस्क द क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. ओके, फाइन. ओके, अंडरस्टैंड? दिस इज द एसओपी, दिस इज द के मैप स्ट्रक्चर फॉर द पीओएस फॉर 2 वेरिएबल. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रॉम द 0 लेवल आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग. प्लीज, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज. Yes, sir. Yes, sir. इट इज वेरी नेसेसरी है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आई विल मूव ना. डोंट फील हेजिटेशन टू रिस्पॉन्ड. ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज. यू नो व्हाट आई एम डूइंग. Okay, done. Now what about the 3 variable K map? Okay, just removing. 3 variable K map. Total block will be 8. 8. Okay, so immediately I am going to draw. These are the basics. ये रोज नहीं होगा, ठीक है, बट स्टार्टिंग में इसका होना बहुत जरूरी है. तो 1 minute प्लीज. ओके, another only 5 minutes I will take to draw all the structures. That's it. So these are the 8 blocks.
Now what about the plottings of zeros and one second. So this region will be, because three variables means A, B, C. These are the odd number of variables. तो हाफ डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये जो रीजन है वो A के लिए और ये पूरा रीजन BC के लिए है. तो यहां पर हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे 0 और ये क्या होगा 1. Now please anyone will tell, this will be the 0 0 according to the gray code. Now what will this, इसका क्या नंबर होगा 0 0, after that 0 0 0 1 0 1 then 1 1 1 1 1 1 1 0. great. अब अगर हम यहां पर A और B को डिवाइड करें कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, so how can we divide in the form of complement? So this will be A or A bar? A. Why? Because in a product of sum हम 1 को 0 बनाते हैं, तो ऑलरेडी 0 है, इसको बनाएंगे, ये बनेगा A bar. okay. A bar. Now what about this? A small twist over here, बहुत छोटा सा डिफरेंस, यहां पर आपको प्लस साइन यूज करना, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम. तो प्रोडक्ट ऑफ सम में यहां पर आपको प्लस साइन, अगर हम यहां पर प्लस साइन नहीं लेंगे तो डॉट आ जाएगा, और डॉट का मतलब हो गया कि हम एसओपी बनाने लगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो यहां पर ऑलरेडी 0 0 है, नो नीड टू टेक एनी कॉम्प्लीमेंट. नाउ व्हाट अबाउट दिस B plus C complement. Good. Now what about this? B complement plus C complement. Plus C complement. Excellent. Okay. Now what about this? B complement plus C. Very good. Okay. Now the numbers are the same. You know that 0, 1, 2 3, लास्ट के आप रिवर्स कर लीजिए, 4 5 6 and 7. अंडरस्टैंड? वन मोर थिंग, जब आपको केमैप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वन मिनट प्लीज, मैं जरा सा एक चीज, ठीक है. अब देखो, जब भी आपको केमैप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि इफ यू टॉक अबाउट दिस बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, तो एक ही क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए और क्वेश्चन नंबर 1 बी दिया जाता है. तो जो ए वाला क्वेश्चन होता है वो केमैप एसओपी के लिए होता है, और जो बी वाला क्वेश्चन होता है वो केमैप पीओएस के लिए होता है. ऐसा जरूरी नहीं कि कहीं पर लिखा हो कि इट इज पीओएस, आपको इस सिंबल से आइडेंटिफाई करना होता है, जो यहां पर आपका पीएस का सिंबल है, ये पाई का मतलब होता है पीएस. और अगर हम इसको इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो दिस इज बेसिकली द एसओपी क्वेश्चन एंड दिस इज बेसिकली द पीएस क्वेश्चन. ओके, हमें बताने का क्या पर्पस था, ठीक है. ये अंदर जो पोजीशन दी जाती हैं, ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, ऑन दीज नंबर्स यू प्लॉट बेसिकली 1 इन द एसओपी. अब अगर हम पीएस की बात करें तो आपको इन पोजीशंस पर जीरोस प्लॉट करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि इन पोजीशंस पर हमको 0 प्लॉट करना है. ओके, जैसा कि हम इन पोजीशन पर 1 प्लॉट करते थे, वैसे ही आपको इन पोजीशन पर 0 प्लॉट करना है. ओके, ऑलराइट. नाउ कमिंग बैक. ओके, सो सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ पोजीशन दी गई हैं, तो सिंपली यू हैव टू प्लेस द 0 0. ओके, after that you can make the pair like that. Okay, suppose one more 0 is there like that, so again you can make a pair. Okay, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, अभी तो सिर्फ हम एक एग्जांपल्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं. इस तरह से आप पेयर्स बना सकते हैं. पेयरिंग के रूल्स, कॉट के रूल्स एंड ऑक्टेट के रूल्स वैसे ही हैं जैसे आपके एसओपी में. सो वन सेकेंड प्लीज, आई एम जस्ट सेंडिंग बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी. Okay, 1 minute please. Okay, fine. Now this is completed. Now the last K map is
4 variable, no problem. Four variable K-map. So total block will be 16. Understand? Very important category. Okay, 98% chances पूछे जाने के. Now, immediately we have to draw. Okay. Now, division will be like that, same as we have done in the SOP. Done. Okay. Now this is the partition. अब हमें कैसे इसको स्टार्ट करना है? इसको स्टार्ट करने के लिए this will be the 0 0 and 0 0 means यहां से हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे. तो कैन वी राइट a plus b if you all are agree? 0 0 का मतलब होता है a plus b. अब अगर हम इस सेल की बात करें 0 0 के बाद 0 1 and a plus b बार. okay. अब अगर हम इसकी बात करें 0 0 0 1 1 1 1 1 क्या हो जाएगा? a बार प्लस b बार. 1 minute please. Okay, now what about this section? This section 0 1 0 a bar b 1 0 बार प्लस b. a बार प्लस b. ओके, नो प्रॉब्लम. कहीं पर अगर आपको डाउट होगा तो हम उसके लिए तो हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, तभी हमारी समझ में आएगा कि स्टूडेंट की समझ में आ रहा है कि नहीं. ओके, सो अब अगर हम इस पोर्शन की बात करें 0 0 तो रहेगा ही, नीचे क्या हो जाएगा? b प्लस. जो काम आपने इधर किया है वही काम आपको इधर करना है. जो काम आपने इधर किया है वही आपको इधर करना है. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस यस सर 4 वेरिएबल तो c प्लस d होगा ना? C plus D होगा. गुड गुड गुड. मैं चेक कर रहा था ना आप लोगों को. c प्लस d. अब ठीक है? d. अंडरस्टैंड. बहुत दिन से चेक भी तो नहीं किया था. अब यहाँ पर c प्लस d बार. ओके ओके. नाउ व्हाट अबाउट दिस? c plus d c प्लस d और c बार प्लस d c बार. bar plus d plus प्लस d बार. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट दिस? c bar plus d c बार प्लस. अंडरस्टैंड. अब अगर हम इन नंबर्स पे आ जाएं, बस ये आपको बहुत ध्यान से इसको याद कर लेना है कि किस टाइप से हम पीओएस में वेरिएबल्स को लेते हैं, कहां कॉम्प्लीमेंट होता है, कहां नहीं कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि पूरी एक्सप्रेशन हमारी डिस्टर्ब हो सकती है. जरा सा भी अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए और कहीं पर भी अगर हमने बार लगा दिया, जैसे अभी मैंने चेक करने के लगा दिया था, ठीक है, तो आपका आंसर भी डेफिनेटली रॉन्ग आएगा. और ये रॉन्ग होने का मतलब है इट्स द बिगेस्ट लॉस इन अवर पेपर. K-map रॉन्ग होने का मतलब है बहुत बड़ा लॉस. अंडरस्टैंड? बिकॉज 5 मार्क्स और 10 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन अवर एग्जामिनेशन. तो चलते हैं, ठीक है. प्रैक्टिस से सब कुछ कवर अप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अभी तक किसी का कुछ ऐसा हुआ नहीं हमारे स्टूडेंट्स का. ओके, नाउ नंबर्स के लिए सेम 0 1 2 3 then 4 5 6 and 7. ये तो बिल्कुल आपको याद है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है. अब उसके बाद नीचे आ जाइए 8 9. क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन ऑलवेज द सेकेंडरी थिंग. पहले हम टॉपिक को अच्छे से समझ तो लें, उसके सारे एस्पेक्ट समझ लें, उसके बाद तो हमें क्वेश्चंस पे आना ही है. तो 8 9
10, 11, 12, 13. This one will be 14 and 15. This is the basic structure of the 4 variable K map. ये चेंज नहीं होगा, बस क्या चेंज होगा वो भी मैं आपको बता दूं, समटाइम, बहुत रेयरली, क्योंकि अभी बोर्ड ऐसा चेंजेस कर नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि ABCD की जगह पर PQRS आ जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, तो बस आप AB को PQRS से रिप्लेस कर लीजिएगा। ओके, वो आपको ऑन स्पॉट थोड़ा सा डिसाइड करना होगा जब आप पेपर देंगे। कॉपी एंड आई एम सेंडिंग इन योर ग्रुप, 1 मिनट। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चंस को ले सकते हैं। अगर आपको एसओपी क्लियर है तो ओनली 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। क्वेश्चन के लिए हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन इसमें भी ले सकते हैं, हम यही ले लेते हैं क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है। यहां पर साइड में हम क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इसका किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आपका आएगा F ABCD इज इक्वल टू पाई, यहां पर पाई है, समझ लीजिए, हम पाई का सिंबल लेंगे। ओके, और हमने यहां पर ले लिया 0, 1, 4, 5 एंड 6। बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चन ये। ओके, तो पाई से ये पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। हम चाहते हैं कि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन देखते ही बता दें कि सर इसमें एक कॉर्ड एक पेयर बन रहा है। सी, अब देखिए इन पोजीशंस पर हमको क्या प्लॉट करना है? इन पोजीशन पर हमको 0 प्लॉट करना है। तो एक तो 0 यहां आ जाएगा, है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। एक 0 आपका यहां आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, फिर व्हाट अबाउट दिस? अब आपको देखना है कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज। आई हैव टेकन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन पियर्स। तो इसमें क्या क्या बन रहा है? एक कॉर्ड बन रहा है और एक सिंगलेट। क्या बन रहा है? एक तो कॉर्ड हमारा ये बन रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड व्हाट अबाउट वन कॉर्ड वन पेयर? ये सिंगलेट भी तो वन कॉर्ड वन पेयर। यू नो द सिंगलेट कॉन्सेप्ट बन सकता है वहां पर जहां पर ये किसी के साथ कोऑर्डिनेट ना कर पाए, लेकिन आपको मालूम है, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैप रोलिंग। तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करके एक पेयर बना सकता है। अब इतना तो आपका वैसे ही था जैसा आपका पीएस में था, हम डिफरेंसेस बताते चले जाए। अब आपको एक काम करना है कि इसका रिडक्शन थोड़ा सा अलग है, तो रिडक्शन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो रिडक्शन के लिए हम एक काम करते हैं, इस पोर्शन में आते हैं, थोड़ा ध्यान देना आपको रिडक्शन पे। ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। सो कॉर्ड की अगर हम बात करें तो कौन सा कॉर्ड हमने लिया था? 0, 1, 4, 5। अंडरस्टैंड? ओके, तो अब अगर हम इस कॉर्ड की बात करें तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, पहले हम उनको मार्क कर लें। तो इस कॉर्ड के लिए आराम से, बिल्कुल आराम से हम चल रहे हैं, ठीक है? तो इस कॉर्ड के लिए हमारे पास ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, दिस कंप्लीट सेट इज इन्वॉल्व, और ये हमारा कंप्लीट सेट इन्वॉल्व है। तो इनमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है? क्या कॉमन मिल रहा है? ए प्लस सी, और इधर क्या कॉमन मिल रहा है? सी। अब देखो यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि ये पीओएस है, एसओपी नहीं है। तो एक्सप्रेशन लिखते वक्त तुमको प्लस साइन को बिल्कुल भूलना नहीं है। प्लस साइन तुमको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। ओके, डॉट के केस में आप साइन लगाएं ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट अगर कहीं लिखा है ए बी तो दैट मीन दे आर ए मल्टीप्लाइड बी अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल। बट ए बी अगर लिखे हैं तो ये कभी नहीं प्रूफ हो सकता कि ये ए प्लस बी है। तो प्लस का साइन आपको ध्यान से लगाना होगा। तो यहां पर हमको ए कॉमन मिल रहा है और यहां पर हमको सी कॉमन मिल रहा है। तो हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन? जस्ट अ मोमेंट प्लीज,
जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ए प्लस सी, अंडरस्टैंड? ये सारे आपके सम्स बनेंगे, फिर इनको हम प्रोडक्ट करेंगे। ओके, 1 मिनट। ना हमारा एक पेयर भी तो था, और पेयर हमारा किस टाइप से आ रहा है? पेयर हमारा बन रहा है 4 6 पर। पेयर का रिड्यूस टर्म देख लेते हैं, 1 सेकेंड प्लीज। ओके, पेयर का रिड्यूस टर्म जो बन रहा है, उसके लिए हमारे कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं? एक तो हमारा ये पूरा वेरिएबल इन्वॉल्व है, आपके सामने ही सब कर रहे हैं, ठीक है। और एक आपका ये सेट इन्वॉल्व है पेयर के लिए। अगर हम इसको ऊपर अपर रीजन में देखें तो ये, लेफ्ट हैंड रीजन में देखें तो ये इसका लेफ्ट हैंड, सॉरी, इसका लेफ्ट हैंड रीजन ऑलरेडी कवर हो चुका है, अपर रीजन ये। सो ये तो जब इसके साथ और इसके साथ इन्वॉल्व होगा तो ये तो पूरा कॉमन होगा ही। इनमें कॉमन क्या मिल सकता है? इसमें और इसमें हमें कॉमन मिल रहा है डी, तो ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार प्लस डी, वेरी गुड, प्लस डी, plus D, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ए प्लस बी बार प्लस डी। ओके, विद अ पीस ऑफ माइंड, आराम से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आई एम गोइंग टू राइट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन? रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखेंगे? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम। तो दिस इज माय सम, ओके, and after that you have to put a dot, then you have to write the another set, a plus b bar plus d. Absolutely fine. So this is your reduced expression, understand? अब reduced expression के gates कैसे कैसे बनेंगे? मैं आपको दो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, 100% इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन से आपके आएंगे। तो कॉम्बिनेशन नंबर 1, 1 minute, here I am writing combination number 1, okay? Okay. After 10 minutes the meeting will be over, okay? Draw the logic gate of reduced expression. Assume that variable and their complement are available as input. Okay. इसको तो हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, इस लाइन का मतलब क्या होता है, we know that. Now the condition number 2. कंडीशन नंबर 2 हमारी है, पहले हम इस कंडीशन पे बात करें। कंडीशन नंबर 2 हम ओरली आपको पहले बोल रहे हैं, then after that in the second question I will involve that condition. Draw the logic gate of the reduced expression using the NOR gate only. Using the NOR gate only. And assume that variable and their complement are available as input. मैंने आपको बताया था in one lecture, सेशन 4 और सेशन 5 की बात है, हमने आपको बताया था कि जब भी हम PS एक्सप्रेशन लेते हैं तो PS एक्सप्रेशन की बेटर कॉम्पैटिबिलिटी NOR गेट के साथ है और SOP की बेटर कॉम्पैटिबिलिटी NAND गेट के साथ है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको PS के मिलेंगे, अगर उसमें यूनिवर्सल गेट के थ्रू आपसे कहा जाएगा सॉल्व करने के लिए तो NOR गेट होगा, और अगर हम SOP की बात करेंगे तो उसमें आपको NAND गेट मिलेगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन में ये केस कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडरिंग दिस केस, ड्रॉ द लॉजिक गेट ऑफ द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन, अज्यूम दैट वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट आर अवेलेबल एज इनपुट। यानी कि हमको इसका लॉजिक गेट बनाना है और assumption है कि हमको नॉट गेट यूज नहीं करना। सो 1 सेकेंड प्लीज, किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। ओके, नाउ ए एंड सी, तो ए और सी को हमें कौन से गेट से ज्वाइन करना है? प्लस इज देयर, so we have to use Where is plus? Where is plus? this is OR gate. Now Where what is plus? now what about this? A, now B complement,
तो assume that variable and their complement are available means B bar you have to pass. No need to draw the NOT gate. On this point, I want to communicate with the CBSE student. यहाँ पर आपको NOT gate बनाना होगा, क्योंकि NOT gate के लिए assumption CBSE में नहीं है, तो just B bar को आपको NOT gate से पास कर देना है, बाकी सब कुछ सेम है. This is D. And all these lines will be connected to the OR gate. And इन lines को हम कौन से गेट से ज्वाइन करेंगे? कौन से गेट से ज्वाइन करेंगे? AND gates. AND gate. Understand? So this is the complete question. Complete question. इसमें कुछ भी नहीं है. बस आपको नोटिस क्या करना है, यहां पर हमने B बार को डायरेक्टली पास किया था क्योंकि इसमें assumptions था. तो this is a complete question. अब जस्ट अ मोमेंट प्लीज. अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको इतना क्लियर है, प्लीज रिस्पॉन्ड. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन. वैशाली की आवाज मैं पहचानता हूं, आ रही है, ठीक है. व्हाट अबाउट हर्षिता? एंड वन सेकंड, लेट मी. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Great. So 16 participants are there today. Bhavya, clear? Yes, sir. Mr. Rizvi? Yes, sir. Mr. Ansh? Yes, sir. Clear. Okay, very good. Now Divyanshi Saxena? Yes, sir. Okay. And Mishti, clear? Yes, sir. Pavni? Pavni? Yes, sir. Clear there? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, what about the second category on the same question? इसी क्वेश्चन में हम एक और कैटेगरी ले लेते हैं ताकि ये भी पॉइंट कवर हो जाए. सेकेंड अप्रोच. Draw the logic gate of, one second, reduced expression by NOR gate only. Assume that variable and their complement as input. Okay. थर्ड कैटेगरी आपको कभी नहीं मिलेगी. You will never get the third category as per the latest amendments in the ICSE board. Okay. So first category we have done. हमने देख लिए, यही है फर्स्ट कैटेगरी. सेकेंड कैटेगरी का मतलब है जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आपकी आ रही है उसको आपको नॉर गेट से बनाना है, और साथ में assumption है कि आपको नॉट गेट यूज नहीं करना है. ओके, तो इसी क्वेश्चन में हम लोग सेकंड कैटेगरी भी इन्वॉल्व कर लेते हैं. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. तो एक्सप्रेशन हमारे पास है सामने, साइड में लिखी हुई है, ये एक्सप्रेशन है. अब इसको हम बनाने जा रहे हैं नॉर गेट्स. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट. कैसे बनेगा? जस्ट अ मोमेंट. ए प्लस सी के बीच में कौन सा गेट है? और गेट. और OR गेट हमें यूज नहीं करना है. OR गेट हमें यूज नहीं करना है. हमें कौन सा गेट यूज करना है? NOR गेट. बहुत दिन हो गए. NOR गेट सबको मालूम है ना कैसा बनता है? इधर बना के दिखा रहे हैं. इस तरह से NOR गेट बनता है. And what is the output of the NOR gate? A plus B whole bar. A plus B whole bar. And this is also called universal gate. And in the other word, we can say that it is also called functionally complete gate.
आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल गेट की प्रूविंग जो हम करवाएंगे। ओके, इस तरह से आपका नॉर गेट बनता है एंड दिस इज द आउटपुट फॉर अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ना अब अगर हम यहां पर बनाएं तो a प्लस सी, तो यहां पर है a प्लस सी, तो हम प्लस का मतलब होता है और गेट, तो और गेट तो हम यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर हम a और c को कौन से गेट से पास करेंगे? नॉर गेट से। ओके, अंडरस्टैंड? ये नॉर गेट है यार। ओके, नाउ दीज थ्री अभी हमारा ये पार्ट बन गया है। अभी ज्वाइनिंग के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले हम ये पार्ट भी बना लेते हैं। ए एंड बी बार, तो एजम्पशन दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो नॉट गेट हमें यूज नहीं करना है, तो बी बार को हमें डायरेक्ट पास करना होगा। साथ में एक डी भी है क्योंकि ये पेयर था, पेयर में हमेशा 3 वेरिएबल्स होते हैं। तो इन तीनों को हम कौन से गेट से पास करेंगे भैया? नॉर गेट। नॉर गेट। अब कुछ दिनों तक आप नैंड गेट भूल जाइए, नॉर गेट याद रखिए। अब ये 2 अलग अलग लाइंस हैं। इन 2 अलग अलग लाइंस का मतलब है कि हमारा ये कंपोनेंट्स और ये कंपोनेंट्स हमारे बन गए। जैसे हम कार मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो पूरी कार एक साथ नहीं बनती है, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट बनता है और वो सारे पार्ट्स आपस में असेंबल कर दिए जाते हैं, तो पूरा मॉडल क्रिएट हो जाता है कार का। तो ये अलग अलग हमारे प्रिपेयर्ड हो गए। अब इन दोनों मॉडल्स, अब इन दोनों को हमें असेंबल करना है, अटैच करना है। तो जोड़ने के लिए नाउ यू कैन सी दैट द डॉट ऑपरेटर इज देयर, तो हमें कौन सा गेट यहां पर यूज करना होगा? अगेन वी हैव टू यूज द विच गेट? नॉर गेट। नॉर गेट। अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज द, and this is the answer of this category, and this is the answer of this category. Understand? Very important discussion, very important. Just copying and sending. 1 second please. Very important discussion, and after this your peers will be. Okay. Okay. So, any doubt in this? Any doubt in this structure? Please. No, sir. No, Okay. sir. Please take your time. ठीक है? 5, 6, 10 seconds and please respond. No, sir. No, sir. Very good. अगर हम आपसे कहें तो ये बात गलत नहीं होगी कि आपका एसओपी और पीएस कंप्लीट हो गया, बस सिर्फ क्या बचा है? क्वेश्चन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बची है, जो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप थोड़े क्वेश्चन अपने आप से भी कर सकते हैं। टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड, यही आपको सारे क्वेश्चन पे करना है। ओके, बस नैंड और नॉर का आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली एसओपी एंड पीएस। ओके, पापा ना मैंगो शेक। okay, so I just want to take the another question of the PS. 1 second please. तो उसके लिए हमारे पास पूरी लिस्ट है, इसमें से हम ले लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इस क्वेश्चन को हम लोग वहां पर सॉल्व करते हैं। ओके, आपके सामने जस्ट आई एम कॉपिंग। 1 minute. Let me see the control Z is. Again, we have to draw the complete structure actually.
Okay, so it will take another 1 or 2 minutes. Closing. ओके, इसका टेम्पलेट अभी क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि नया टॉपिक है, हम टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. Is basically the question. Okay, so please have patience. Okay, now in the left hand side 0 0 means a plus b, 0 1 a plus b bar, 1 1 b bar, 1 minute please. A plus b bar, a bar plus b bar, a bar plus b. Absolutely right. अब इस रीजन में हमें क्या करना है? 0 0 c plus d, 0 1 c plus d bar, 1 1 c bar plus d bar, 1 0 c bar plus d. Okay, now what about the numbers? Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like that. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. अंडरस्टैंड. अब कहां पे क्या प्लॉट करना है ये हमें इससे पता चल जाएगा. तो 3 पे, सॉरी, what we have to plot 0 because it is product of sum. 3, 4, 6, 9, 11. Sir, Yes. sir, 2 chords. One minute please. हाँ, good try. 12. 12 के बाद 13, 14 and 15. 2 chord 1 pair. 2 chord 1 pair.
Yes. So 2 chord 1 pair. Yes, sir. ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले कौन कौन से कॉर्ड बनेंगे, जल्दबाजी नहीं, यहां पर आराम से आपको काम करना है, टेक योर ओन टाइम, ठीक है। 4, 6, 12, 14. दिस इज बेसिकली वन कॉर्ड, ओके सर 3 कॉर्ड बनेंगे। ओके। आई विल आस्क द थर्ड कॉर्ड ओनली विथ यू। Now please tell me, where is the third chord? सर 12, 13, 15, 14. 12? 13, 15 and 14. Because already occupied na? These are already occupied. We cannot occupy it. If we will reoccupied, then it will be redundancy. Redundancy. हम तब बनाते हैं कॉर्ड जब कोई जीरो पेंडिंग हो, कोई जीरो फ्री हो। ये जीरो फ्री है, ऑलरेडी इन्वॉल्व। ये जीरो फ्री है, नहीं, ऑलरेडी इन्वॉल्व। Yes, sir. जीरो फ्री है, नहीं, ऑलरेडी इन्वॉल्व। जीरो इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अब सिर्फ हमारे पास ये जीरो बचा है, इस जीरो को हमें इन्वॉल्व करना है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, जो आप वीडियो से नहीं कवर कर पाते हैं कुछ चीजें। ओके, सो अब ये जीरो हम कैसे, इसको हम इसके साथ डायगोनल कर नहीं सकते क्योंकि डायगोनल का रूल नहीं है। ये इसके साथ नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, गैप बहुत ज्यादा है यहाँ। तो क्या 0, 11. So 3, 11. यस 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 3, 11 मैप रोलिंग। Yes, sir. एब्सोल्युटली फाइन। ओके, हमेशा एक बात याद रखिए कि तब तक हम ये कॉर्ड पेयर का और ऑक्टेट का प्रोसीजर फॉलो करते हैं जब तक जीरोस हमारे फ्री हों या जब तक 1। जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट क्लास में एडजस्ट करना है, अब सारे स्टूडेंट क्लास में एडजस्ट हो गए तो अब हमारे एडजस्टमेंट का काम ओवर हो गया। ओके, अब उनको रीएडजस्ट नहीं करेंगे, दे आर ऑलरेडी एडजस्ट। ओके फाइन। सो अभी आई जस्ट वांट टू नो द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। तो कॉर्ड की रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आ रही है ए बार प्लस डी बार। एग्री? इस कॉर्ड की ए बार प्लस डी बार, एंड इस कॉर्ड की एक्सप्रेशन आ रही है बी बार प्लस डी। एग्री और नॉट? इस कॉर्ड यस सर। आप देख कर सीखिए। Yes, sir. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो B प्लस सी बार प्लस डी बार इज द पेयर। B प्लस सी बार प्लस डी बार हम लिखेंगे दैट आई विल राइट, लेकिन हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि विदाउट सर्कल्स आप कर पाते हैं कि नहीं। ओके, 1 मिनट। क्या? अभी यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ओके, कॉर्ड 1 किसको हम लोग लेके चल रहे हैं? 13, 15, ओके 9, 11। Now please tell me the reduced expression fast. Okay. So A bar plus D bar. A bar plus, very good Vishali. Okay, A bar plus D bar, and after that cot 2 क्या बन रहा है हमारा? cot 2 हम ले लेते हैं 4, 6, 12, 14। What about this? इसकी reduced expression क्या होगी? अगर हम B bar plus D. तो उसमें ये सेट इन्वॉल्व है, ये वाला, तो इसमें B बार प्लस डी। और अगर हम इसी को ऊपर देखें और ये पोर्शन इन्वॉल्व है तो D। नाउ व्हाट अबाउट पेयर हमारा है 3, 11। ओके, 3, 11। तो इसके लिए ये सेट और ये सेट इन्वॉल्व है, तो इनमें हमको B कॉमन मिल रहा है, तो मैंने B किया। और अगर इस पेयर को हम ऊपर देखें तो C बार प्लस D बार, ये पूरा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब ये इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो कॉमन आ जाएगा। तो B प्लस C बार प्लस D। ऑल राइट, and just I want to write the reduced expression. A bar plus D bar
dot B bar plus D dot B plus C bar plus D. Understand? This is your 2020 board question of peers. Okay, done. Okay, the class is over. Just a moment, please. If you have any doubt, you can ask. Good question. Understand? Can we close the session? सर Yes, yes. सर एक बार पेयर बता दीजिए. Pair. 1 minute. So ये पेयर था ना हमारा. This is the pair. इस पेयर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये वेरिएबल इन्वॉल्व है. रिस्पॉन्ड. अगर हम 0 की बात करें Yes, sir. तो ये इन्वॉल्व है. तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है? B. बी मिल रहा है. तो बी लिखा हमने. यहां देखो. अब अगर इसकी बात करें तो पेयर में ये पूरा लिखा जाएगा. क्यों? क्योंकि जब ये इसके साथ कंबाइंड होगा तो इसमें भी आएगा, और जब ये इसके साथ कंबाइंड होगा तो इसमें भी एग्जिस्ट करेगा. तो सी बार प्लस डी बार विल बी द कॉमन. तो सी बार प्लस डी बार आई हैव रिटन लाइक दैट. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके. नाउ ये मैं आप पे, ठीक है, आप इसका बेसिकली सर्किट बना लीजिएगा. ओके, दिस इज अ होमवर्क. यू हैव टू मेक द सर्किट. तो सर्किट के लिए देखो 2 chord 1 pair is the answer matched. ओके, तो सर्किट के लिए आपको क्या करना है? वेरी इजी. एज्यूम दैट वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट आर अवेलेबल एज इनपुट. ओके, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. ओके, दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन. शीट आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू. आपको शीट दी जा चुकी है, ग्रुप पर है. इफ एनीबडी हैविंग द प्रॉब्लम सो आई विल रीसेंड. ओके, एनीथिंग एल्स? Anything else? Please. Do you want to ask any question? No, sir. No. No, sir. Okay. So I'm just closing the session. Thank you. Thanks to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Any problem, please? Okay.